Okay, we are live. Uh, yes. Hello, guys. This is Sajib again. Today, we're going to talk about the operational excellence, जो कि आज हम जो हैं अजान साहब के साथ हैं और जैसे हम लोगों ने स्केड्यूल किया था हमारे जैसे सेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों का और बहुत अच्छे मतलब वो आ रहे हैं आपके कमेंट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग ऑल दैट. So we welcome Mr. Azan. They will talk about the operational excellence. Assalamu alaikum, Saad. Thank you for having me here. I've been following your sessions as well. काफी informative discussions हो रही होती हैं with a lot of industry experts that you are contacting. Uh, in our discussion today, I didn't have any big ideas. मैं primarily जो current scenario है उसके perspective से बात करना चाह रहा था, especially considering के right now in this pandemic situation, how industries are operating, how professionals are dealing with this situation. खास तौर पे अगर हम हमारी फील्ड के एस्पेक्ट से बात करें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से बात करें, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे चैलेंजेस हैं. Secondly, what are we looking forward to in a post pandemic industry sector? अगर हम अपने पाकिस्तान की रीजन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं. ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करें, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं. In a nutshell, there is a lot to be positive about as well, because the way things are going, the way certain manufacturing sectors को अब operate करना पड़ रहा है in tight budgets, lower costs, that is giving us a new platform to really work on our initiatives. हमारी field में normally the biggest challenge is not the projects or the improvements. नॉर्मली हमारा ज्यादातर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो कल्चर का और जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के रेजिस्टेंस का होता है वहां से आ रहा होता है. एंड वी all learning and growing towards living with that. We are all finding ways to work around that. हम लोग अपने people skills पे काम करते हैं, हम लोग change management की philosophies apply करते हैं. There's a lot of ways different companies इस पर different तरीके से deal करती हैं. But in the scenario that is building up now, I think different companies or different company leaders को अब there is no way that they can turn a blind side to the concept कि यार हम industrial engineering operation excellence के बगैर उनकी company survive कर सकती है. There is absolutely no way that we can ignore this aspect anymore. और पाकिस्तान में different levels of implementations हैं. हम टेक्सटाइल्स में देखें तो बहुत रॉ लेवल की implementations हैं, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल में देखें तो relatively better है. But now the play field is going to be level for everybody. No one is going to survive this phase. No one is going to come out of this phase smiling until and unless वो अपनी cost को control करें, until and unless वो इन initiatives को truly और एक sustainable way में accept करें. एक आध दुक्का projects काफी सारी companies करती रहती हैं, लेकिन एक sustainable way में organization lean को implement करे या different aspects of industrial engineering को implement करे, that is a real challenge now. ओके बिल्कुल ऐसे ही है. नॉट आप जैसे आपने बात की ऑटोमोटिव. यस दे आर मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर इज वेल अवेयर अबाउट द टीपीएस लीन थिंग्स एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस थिंग्स एंड सिक्स सिग्मा एंड ऑल दैट. काफी अच्छा स्कोप है इन ऑटोमोटिव बिकॉज आई एम आल्सो वर्क इन द वन ऑफ द ग्रुप हाउस ऑफ हबीब थल इंजीनियरिंग. तो काफी अच्छा स्कोप है और काफी इम्प्लीमेंटेशन है और लाइक ऑल दैट. बट आपने एक बात करी कि फार्मास्यूटिकल या इट्स फार्मास्यूटिकल आल्सो बट आई एम आल्सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी. देयर इज अ बिग गैप यू कैन से. बहुत गैप है अभी भी. बहुत चांसेस हैं इन फार्मास्यूटिकल के दे ओवरकम राइट नाउ. अभी रिसेंटली जीएस के ने अभी एक चीज लॉन्च करी है. मैं हर वीडियो में शेयर करता हूँ. आपके साथ भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट शेयर करने जाओ. जीएस के जैसे लाइक यू कैन से टीपीएस है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है. GSK is going to be launched the GPS like global like you can say GlaxoSmithKline production system. तो वो अभी इस तरफ जा रहे हैं और दे आर टेकिंग द एक्सपर्टीज. और आई का जैसे स्कोप लाइक यू कैन से कि आपने जैसे बताया कि ओडी और आई का जो स्कोप टेक्सटाइल में एकदम से रेज हुआ है, ऐसे ही आई का स्कोप इन फार्मास्यूटिकल और अदर सेक्टर्स के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता गो ऑन जा रहा है. जैसे आपने बात करी है कि अब जो है अब जो दुनिया जो जा रही है वो कॉस्ट सेविंग की तरफ जा रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान. ठीक है, लाइक यू कैन से कि अब कॉस्ट सेव करना है. ठीक है, अब किसी भी तरह से किसी तरह टूल कौन से टूल्स यूज करने हैं एंड कौन से टूल आपके कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं. यू कैन से हमारे पास एक टूल होता है इन क्वालिटी और सिक्स सिग्मा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी.
उस पे काम करना है। अदरवाइज अवर इंडस्ट्री, अवर लाइक ऑपरेशनल एक्सलेंस पे काम करना है, वो भी देयर इज आल्सो एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट सेविंग फैक्टर। तो अब हम लोगों ने क्वालिटी उस पे काम करना है, कॉस्ट पे काम करना है। if we do not focus on the cost, then we will not, our industry will not survive। जैसे कि मतलब अब थोड़ा सा मिच्योर होना है। अदरवाइज ये कि जैसे अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है, यू आर वन ऑफ द फ्रॉम टेक्सटाइल, वन ऑफ माय फ्रेंड इन टेक्सटाइल इन आर्टिस्टिक मिलेनर्स, दे सेड दैट कि आने वाले वक्तों में 2 या 3 मंथ्स के बाद एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। नॉट ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, बट इन टेक्सटाइल देयर इज अ बिग, क्योंकि बहुत बड़े आवाम है, there's a huge population in textile industry, so there's a big you can say downsizing at their textile side। Yes। नहीं, you're absolutely right about that. The biggest impact textiles को इसीलिए because it's a labor intensive sector. सबसे ज्यादा लेबर की जो तादाद है हमारे पास ये काम कर रही होती है। मैं जिस कंपनी में इस वक्त काम कर रहा हूँ दैट इज अ रिलेटिवली स्मॉल प्लेयर, लेकिन उसके अंदर भी एटलीस्ट 5 to 6 thousand लोग काम कर रहे होते हैं। एंड जो ग्रुप आप बात कर रहे हो आर्टिस्टिक की और दूसरे और टेक्सटाइल्स की जायंट्स की, दे हैव लाइक 20-30 thousand प्लस। अब अनफॉर्चुनेटली दे आर गोइंग टू एंड अप इन अ सिचुएशन कि अपनी शायद प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिड्यूस कर रहे होंगे, which is obviously in turn resulting to downsizing situations. I don't want to use the word downsizing a lot. Different companies इसको different तरीके से deal कर रही हैं. Some companies are taking salary cuts, some companies are doing it the other way around. So that's a challenge we all have to live with. अगर स्पेशली टेक्सटाइल्स की बात करूं तो when you said कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्कोप यहाँ पे बढ़ रहा है, I've been working in textiles for about a good 8 years now, और I've been part of that you could say relatively young generation जब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ी थोड़ी नई आ रही थी टेक्सटाइल्स में, बिल्कुल नई नई अडॉप्ट हो रही थी। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि टेक्सटाइल्स कंपनीज में टेक्सटाइल इंजीनियर से ज्यादा इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को हायर करते हैं इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन क्यूएमएस डिपार्टमेंट्स, इन प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स। राइट नाउ फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई हैव बीन सीइंग दिस experimentation by certain leaders कि अब इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टली थ्रो इन करते हैं, that go work on the direct deliverables। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रहा है, we've seen some good results with that too। टेक्सटाइल्स में इस डिमांड की ज्यादा होने की प्राइमरीली दो वजूहत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए प्योरली कॉस्ट बेस्ड सेक्टर। हमारे पास जितना भी टेक्सटाइल कंपटीशन बांग्लादेश से है, चाइना से, इंडिया से है, जो सबसे लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट बना के दे रहे बिजनेस उसी के पास आता है और आगे भी उसी के पास ही रहेगा। दैट इज, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। अब कंटिन्यूसली हम लोग कॉस्ट पे, इट्स नॉट जस्ट टेक्सटाइल, एवरी सेक्टर हर साल अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि नेचुरली आपकी मैन पावर, ह्यूमन पावर कॉस्ट ऊपर जा रही होती है, ओवरहेड्स कॉस्ट ऊपर जा रही होती है। क्योंकि टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर मुझे 3,000 लोगों को 10% ज्यादा मनी पे करनी है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 10% अपने प्रोसेस से कहीं ना कहीं से सेव करूं, सो दैट आई कंटिन्यू टू बी प्रॉफिटेबल। ये एस्पेक्ट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वी आर सीइंग के टेक्सटाइल्स में बिजनेस थोड़ा सा श्रिंक होगा, वी आर सीइंग के ऑर्डर्स की सिचुएशन थोड़ी सी टाइट होगी। वही कंपनीज ऑर्डर्स को कैप्चर कर पाएंगी दैट आर ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट, दैट आर ऑपरेटिंग विद द हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ यही वे आउट है इस सिचुएशन के अंदर। तो फॉर एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, फॉर अ यंग प्रोफेशनल, मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को दैट आई हैव बीन टॉकिंग विद थ्रू लिंक्डइन और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, बहुत पैनिक में, बहुत परेशान हुए अपने जॉब्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए। बट ऑब्वियसली एक करियर काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उनको काम डाउन करने को कहता ही हूँ, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब लोग उनको ढूंढते ढूंढते आएंगे कि भाई कम ओवर हेयर, ट्रेन अस, एजुकेट अस एंड गेट थिंग्स इम्प्लीमेंटेड फॉर अस। तो ये एक उस एस्पेक्ट से बहुत अच्छा साइन है। दूसरा एक रीजन टेक्सटाइल्स में इन चीजों पे ज्यादा काम करने का रीजन है कि अब हमारे जो बायर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर। व्हेन आई टॉक अबाउट बायर्स, तो टेक्सटाइल्स के जो बड़े बड़े बायर्स हैं, आप मार्क्स एंड स्पेंसर की बात कर लें, आइकिया की बात कर लें, वॉलमार्ट, टारगेट, द बिग बायर्स आउट देयर इन यूएस एंड यूरोप, वो लोग 10-20 साल से ISO 9001 की इम्प्लीमेंटेशन देख देख के थक चुके हैं। वो कागजी एसओपी वाले ऑडिट्स को देख देख के थक चुके हैं। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द स्टैंडर्ड एट ऑल, आई एम माई सेल्फ अ लीड ऑडिटर, और लेकिन मैं जानता हूँ कि स्पिरिट से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है। अगर वो ट्रूली स्पिरिट से हो जाए तो वैसे तो हम लोग को किसी और चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो पेपर की हद तक ही रहता है अनफॉर्चुनेटली। और एक सीजन मैंने मैंने क्योंकि क्यूएमएस में भी काम कर चुका हूँ, मैंने पूरा ट्रेंड देखा है कि पहले ऑडिटर्स आते थे, हम उनको प्रोसीजर्स दिखाते थे, एसओपी दिखाते थे, डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे, राउंड कराते थे और ऑडिटर क्लियर करके चला जाता था और काम चलता रहता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हमारे जो बायर्स के जो विजिटर्स आ रहे होते हैं इंटरनेशनली, वो कोई सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट आ रहा होता है, कोई सर्टिफाइड लीन प्रैक्टिशनर आ रहा होता है, वो फ्लोर्स पे निकलते हैं और हम उन्हें जब एसओपी दिखाते हैं वो कहते हैं आई डोंट वांट टू सी द पेपर, टेक मी टू द प्रोडक्शन फ्लोर एंड शो मी योर इंप्रूवमेंट्स। Now they are talking about real results. Now they are talking about factual data. This is building up pressure on a lot of industries, जिसकी वजह से मैंने in the last 2-3 years
बहुत ज्यादा बूम देखा है टेक्सटाइल में इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हायर होने का। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश भी करता हूँ कि जो यंग ग्रेजुएट्स है, स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से टेक्सटाइल्स के सेक्टर से डरते हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। इट इज नॉट एग्जैक्टली वो उतना मेच्योर या वो इतना सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट नहीं ऑफर करता जितना आपको सो कॉल्ड ऑटोमोबाइल या कोई और एफएमसीजी सेक्टर ऑफर करे। बट अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप खुद अगर अपनी ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हो, आई नो सर्टन कोलीग्स जो मेरे काम करते भी हैं, करते आई भी हैं, वो मुझे बताते हैं कि व्हेन दे स्टेप्ड इनटू दैट कंपनी, तो वो कंपनी ऑलरेडी 98% एफिशिएंसी पे खड़ी थी, एंड दे आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग इट टू 98.5, 98.6, 99 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और उसको सस्टेन कर रहे होते हैं, व्हिच इज इटसेल्फ अ चैलेंज। बट टेक्सटाइल्स के अंदर तो हमारे सिस्टम्स और हमारी एफिशिएंसीज 60s में ऑपरेट कर रही हैं, 70s में ऑपरेट कर रही हैं, हाई इन्वेंट्रीज कैरी कर रही हैं, लाइन बैलेंसिंग के बेसिक इश्यूज हैं, इतना ज्यादा उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है दैट वंस यू गेट इनटू इट ना, आपको कहीं और काम करने में मजा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सीइंग इट्स अ गुड ट्रेंड कि अब इंडस्ट्रियल इंजीनियर ज्यादा आ भी रहे हैं, इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं, एंड थैंक गॉड कि टेक्सटाइल्स की लीडरशिप भी अब थोड़े से इस चीज को मेच्योरली हैंडल कर रही है, टीम्स को टाइम दे रही है। मैंने देखा है, मैंने इस सिचुएशन को भी देखा है कि कुछ इंजीनियर्स को थ्रो किया गया, एक डिपार्टमेंट बोला क्या जाओ 3 महीने में कॉस्ट सेव करके दिखा दो, ना लीडरशिप दी गई ना डायरेक्शन दी गई। टेक्सटाइल के अंदर तो डाटा की ऑथेंटिसिटी का भी एडिशनल चैलेंज होता है, आप उसी को सही करने में बहुत टाइम लगा देते हो। बट अब मैं टीम्स लीडरशिप्स की तरफ से देखता हूँ कि अब मेच्योरिटी आ गई कि टीम्स को ट्रस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, एजुकेट भी करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, रिसोर्सेज भी देते हैं, एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्विक रिजल्ट्स इज समथिंग एल्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स इज समथिंग एल्स। और now they're operating in the right lines, now they're operating in the right ways. Some of the details that I sent you, अगर उसमें से मैं कुछ pointers बताऊं specifically regarding textiles, तो couple of things that are most important इन दिस सिचुएशन। अगर मैं पेंडेमिक की भी बात करूं तो प्राइमरीली सबसे पहले तो कॉस्ट रिडक्शन है। मैं टेक्सटाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर बात करूं तो हमारा जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां पे इन दिस लास्ट 1 मंथ 25% बिजनेस कम हो गया, लेकिन हम उतने ही ह्यूमन रिसोर्स कैरी कर रहे हैं। our company alhamdulillah has taken a decision that we will not go towards any harsh decision making of downsizing. हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइट वेज के हम अपनी इन्वेंट्री में से, अपनी वेस्टेज में से पैसे बचाएं, हम अपने प्रोसेसेस में से पैसे बचाएं, एंड ये थोड़े से 2-3 महीने स्क्वीज करके निकाल लें rather than we do some unfortunate decisions. तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टीम इज इन यू कुड से इमरजेंसी मोड, भाग रही है फ्लोर्स पे, चीजों पे काम कर रही है, इन्वेंट्रीज को यूटिलाइज और रीयूज करने पे काम कर रही है, दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कस्टमर्स के एंड से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई है, हमारे बायर जो हमें क्वालिटी के लिए सवाल करते थे, फिर हमने इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स सस्टेनेबिलिटी और वाटर रिसाइकलिंग और सोलर एनर्जी और ये सारे इनिशिएटिव्स के लिए सवाल करते थे, बिकॉज पाकिस्तान इज ए वन ऑफ द कंट्रीज जो कि वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी हम लोग से बात करते थे। अब जो सिचुएशन आ गई है वो ह्यूमन हेल्थ पे आ गई है, अब वो सिचुएशन आ गई है वो ह्यूमन सेफ्टी पे आ गई है ना, पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन। तो नाउ वी हैव ऑडिटर्स आस्किंग अस टू शो अस पिक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस कि आपने कोविड-19 को हैंडल करने के लिए क्या एसओपीज बनाए हैं, सैनिटाइजेशन गियर्स लगाए हैं, मास्क वर्कर्स को दे रहे नहीं कह रहे, एजुकेट कर रहे नहीं कर रहे। यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का रोल आया हुआ है इन चीज़ों को ट्रेन करने में, इन चीज़ों को मैनेज करने में। वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच इज स्मार्ट लेआउट डिजाइनिंग। स्मार्ट लेआउट डिजाइनिंग इस तरह है कि हम अपने प्रोडक्शन फ्लोर्स में अपने लेआउट्स किस तरह डिजाइन करें कि हम अपनी 1 to 2 मीटर्स की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन भी करें, हमें मशीन्स में, हमें टेबल्स में, हमें वर्क स्टेशन के ऊपर किस तरह गैप्स मेंटेन करने हैं। तो दिस सिचुएशन इज ब्रिंगिंग इन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू आइडियाज। टेक्सटाइल्स में बहुत ज्यादा गुंजाइश है स्पेस इंप्रूवमेंट की। वेस्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डबल फिगर्स में काम कर रहे होते हैं, वो चीज आधी हो जाए तो हम लोग को वी वुड नीड टू रिलीज एनी एम्प्लॉय और एनी वर्कर। तो इन चीजों के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टेज एंड एफिशिएंसीज को कम करें। एंड लाइक आई सेड, अब थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी आ गया हमारे पास कि वी आर ट्राइंग टू एंटर द न्यू मार्केट। स्पेशली हर कंपनी इस वक्त इज फाइंडिंग ऑल्टरनेट वेज टू गेट लिक्विडेट कैश इन। हम टेक्सटाइल्स में फॉर्चुनेटली हमें ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करने की जरूरत है, वी कैन स्विच इनटू पीपीज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। हम लोग मास्क की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं, हम लोग गाउन्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं, हम लोग R&D में काम कर रहे हैं कि फैब्रिक जो हम लोग डिफरेंट फैब्रिक्स और टेरी टॉवल्स पे काम करते हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का किस तरह इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है जाके वो एंटी वायरस सोल्यूशंस ऑफर कर सके। उसकी एप्लीकेशंस इन द कमिंग ईयर्स बहुत ज्यादा आने वाली हैं। तो दिस इज अ टाइम टू प्ले स्मार्ट फॉर एवरीबडी। और मी पर्सनली आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी पॉजिटिव अबाउट फ्रेश इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, क्योंकि उनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एज अ होल
आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज गोइंग टू बी ए बिट ऑफ अ जॉब स्ट्रगल फॉर आर जो इस साल के स्टूडेंट्स पास आउट होने वाले हैं, अगर मैं जनरली जॉब मार्केट की बात करूं, लेकिन एटलीस्ट फॉर आवर फील्ड आई फील के उसकी उसकी एंड पे सिचुएशन अच्छी रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही बोला। वी हैव टू डिजाइन आवर लेआउट्स एंड ऑल दैट। काफी अपॉर्चुनिटी है। लाइक यू कैन से देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आई सेड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर, सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमारे पास लास्ट सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया, मतलब वन ऑफ द ओई के हवाले से बात की, जो हमारे ट्रेनर थे। उन्होंने कहा लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जो डिस्कशन हुई, दे आर विद द जनरल मैनेजर ऑफ थैल इंजीनियरिंग याजाकी प्लांट। तो उन्होंने भी बोला कि इट्स अपॉर्चुनिटी, बट लिटिल बिट मार्केट इज लिटिल बिट स्क्वीज। जो थोड़ी सी होगी पैचअप आएगा, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि 200 से 300 बंदा निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस से निकल रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो देर इज अ लिटिल चैलेंज, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने में, और जैसे कि हमें उस लेवल पे आने के, दुनिया तो इस लेवल, दुनिया बल्कि आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान, आई एम सेइंग दैट के वर्ल्ड क्लास जो थे आज, वर्ल्ड क्लास भी आज रो रहे हैं, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू मेडिकल इश्यूज, ऑल ओवर इश्यूज, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि ये कोरोना एक किस्म से आएगा। बिली गेट्स ने कहा था इन बैक ईयर्स कि ये होगा ऐसा, बट दे डू नॉट टेक सीरियसली अदरवाइज। तो पाकिस्तान की नॉट हम बात करते हैं, मैं क्योंकि आगे आने वाले मतलब नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मतलब ऑन वेडनेसडे और फ्राइडे जो है, हमारे हमारे साथ एक दो सेशंस हैं। लाइक एक वन ऑफ देम ऑस्ट्रेलिया, एक हमारा ट्रेनर है, एक हमारे पास यूके से ट्रेनर है। तो हम लोग उनसे भी डिस्कस करेंगे क्या उस तरफ कोविड 19 का क्या पैनाडेमिक है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या है उसके ऊपर हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लेट्स उसकी बात करेंगे। लेकिन हम ओवरऑल जब एज अ होल से सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर नॉट रेडी। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए इट विल टेक अराउंड 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 2 to 3 years। ओके, सो दिस बात बिल्कुल ये हम लोगों ने करना है, और ये मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है, और कि है सारी चीज़ें। और दूसरी आपने एक अच्छी बात करी कि देयर इज अ बिग, मतलब there's a there's a big room of improvement, there's a big room of industrial engineer। तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट का है, बिल्कुल के चांसेस हैं हमारे कि हमारे जो स्कोप है एकदम से हो। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली मतलब मैं आई एम जस्ट सीइंग दैट कि अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं, फ्यू मतलब फ्यू मंथ्स बैक, अराउंड 5 to 6 months बैक, तो मैं एकदम देखता हूं कि देयर इज enhancing scope of the industrial engineering all that। और एक और मजे की बात बताऊं, मैं एम शेयरिंग विद मतलब इन डेली, मतलब ऑलमोस्ट मैं हर सेशन में एक बात करता हूं, और मैं बताता हूँ जस्ट वन ऑफ, मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखा फ्यू डेज बैक ऑन लिंक्डइन एंड और rosie.pk, असिस्टेंट मैनेजर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब लिटरली यू सी दैट कि कहाँ पे होगा, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। तो मतलब लाइक सेक्टर, मतलब यू कैन से कि इंडस्ट्रियल में तो आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं। आई नो कि फेडरल फाउंडेशन है या बीकन हाउस है या सिटी स्कूल क्यों कर रहा है काम, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ब्रिटिश, जैसे कैम्ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर भी एक स्कोप आ रहा है कि यार चलो एक है, तो वी इंडस्ट्रियल इंजीनियर एज वेल वर्किंग इन दिस सर्विस सेक्टर एज वेल। तो इट्स अ बिग स्कोप यू कैन से। स्पेशली जो अभी आपने ये जो टीक्यूएम वाला पॉइंट बताया, इसमें आई लाइक टू ऐड समथिंग। एवरीबडी इज डिस्कवरिंग एंड डिस्कसिंग न्यू वेज कि जी इस सिचुएशन में ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट स्क्वीज हो रही है, जॉब्स लिमिटेड हो रही है, एवरीवन वांट्स द बेस्ट चांस टू स्टैंड आउट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग वाज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अब और भी ज्यादा है। एक एक वन टाइम प्रोजेक्ट सक्सेस में और एक सस्टेनेबल सक्सेस में यही फर्क होता है, अगर आप लोगों का बाय इन भी एक साथ उसके साथ ही लेते हो। व्हेन वी, अगर मैं टेक्सटाइल्स की एग्जांपल दूं, तो एज आई सेड यू आर वर्किंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। हम लोग सीनियर मैनेजमेंट से लेके मिडिल लेवल से लेके नीचे वर्कर लेवल तक भी काम कर रहे होते हैं, और अगर किसी एक का भी उस प्रोसेस के अंदर, उस चेंज के अंदर बाय इन नहीं होता, तो वो इम्प्रूवमेंट कोलैप्स कर जाती है। Training and educating and coaching has become the most important tool for professionals these days, खास तौर पे हमारे फील्ड में। अब हम जिस सिनारियो में जा रहे हैं, we need to start coming out of theoretical approaches। theoretical approaches से मेरा मतलब ये है कि मैं बिल्कुल, मैं भी इस चीज से गो थ्रू कर चुका हूँ। जब 2011-12 में मैंने जॉब शुरू की थी,
तो माय रोल वाज वेरी लिमिटेड। मैं डाटा एनालिसिस पे काम करता था, मैं लेआउट डिजाइनिंग पे काम करता था और एक प्रपोजल्स के लेवल तक काम करता था, और उसके बाद आगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता था नहीं होता था वाज नॉट माय कंसर्न, वो मैनेजमेंट का कंसर्न होता था। लेकिन हमें इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, गेट थिंग्स इंप्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट लेवल, प्रोडक्शन फ्लोर पे जाके उतरने की जरूरत है। वहां पे जाके लोगों को हमारे टूल्स के बेनिफिट समझाने की जरूरत है, उनको दिखाने की जरूरत है कि भाई ये काम जब हम इस तरह करते हैं तो आप ही की मूवमेंट कम होती है, आप ही का ergonomic इंप्रूवमेंट हो रही है, और आप ही की कॉस्ट सेव हो रही है, और आप ही के डिपार्टमेंट का नाम बेहतर हो रहा है। तो once one we need to show them the positive side of that. That's something that my I learned from my boss and mentor, and that is something जो मैं अपनी टीम को रिपीटेडली प्रीच करता रहता हूँ कि अपने काम की प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करो और उसको फ्लॉलेस रखो, उसको इतना गुड रखो कि जब एक बंदे को आप अपना आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो उसको उसको हार्टली एक्सेप्ट करना होता है। लोगों का माइंड, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर एक किसी का वे ऑफ थिंकिंग है कि जी मैं जिस तरह 20 साल से काम कर रहा हूँ वही सही तरीका, तो वो एक दिन में मूव होना इजी नहीं होता। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। मैंने जो बेस्ट पॉसिबल वे यही देखा कि हम लोग हमेशा एक, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जाते हैं ना, हम हमेशा एक छोटा पायलट रन रिक्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं आपको लगता है ये 500 मशीनों पर नहीं हो सकता, हमें 10 मशीनें दे दें, लेट अस ट्राई दैट, हम आपको उसके फिजिकल बेनिफिट्स दिखाएंगे। You get them to buy into your ideas, you get them to believe in these methodologies। ये सारी चीजें होना शुरू होती हैं तो उस पर काम होता है। अब नाउ यूर टेलिंग मी कि अब फाउंडेशन स्कूल के अंदर भी टीक्यूएम खुल गया है, तो इवन दे आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, यार हम किस तरह कॉस्ट सेव रखें, हम किस तरह अपनी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके यूज करें। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। आई डोंट वांट टू से कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर शुड गो अडॉप्ट अ टीचिंग फील्ड, इवन दो इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल फील्ड। मैं बहुत खुद पर्सनली उसको बहुत पसंद करता हूँ, बट इट्स अ गुड साइन। इसमें आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है। एक चीज और जो इसमें ऐड करूंगा, खासतौर पे यंग प्रोफेशनल्स, ये मेरा थोड़ा सा हमारी यूनिवर्सिटी से एक मेरा थोड़ा सा पेन पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स अभी भी हमारे जो कोर कोर्सेज हैं सिक्स सिग्मा के, लीन के, वो मटेरियल कवर नहीं करा रहे। वैसे तो आप एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी बातें कर लो, लाइफ स्किल्स तो कहीं भी नहीं पढ़ाए जा रहे होते, लेकिन एज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं लड़के, तो पहला सवाल इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे होती है कि आप काइजन के बारे में बताएं, कि आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में बताएं, एंड दे आर ब्लैंक अबाउट इट। और कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आते हैं, लेकिन वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑब्वियसली लैक कर रहे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टूडेंट्स और ये यंग प्रोफेशनल्स टेक दिस एज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि इन आइडियोलॉजीज के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू करो, ऑनलाइन स्टडी करो, शॉर्ट कोर्सेज करो। So many big institutes are offering, NED में भी कोर्सेज हो रहे होते हैं, PIQC में कोर्सेज हो रहे होते हैं। There's a lot of institutes जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लीन सिक्स सिग्मा और काइजन की पूरी नॉलेज लेके बैठो, उसको मिक्स नहीं करना, उसका नो हाउ बेसिक होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, वो सिर्फ इसीलिए अप्रोच कर रही है कि आप उनकी सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करोगे, आप उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, आप उनके प्रोसेस कंट्रोल करोगे। दैट इज द कोर स्किल दे आर लुकिंग फॉर। आपने तो ये एक्टिविटीज लीड करनी है, आपने तो दूसरों को सिखानी है, तो दैट इज समथिंग जिसको थोड़ा सा लाइटिंग लाना है। आई रिमेंबर कपल ऑफ ईयर्स अगो जब मैं एनडी में मास्टर्स भी कर रहा था, तो आई वाज स्पीकिंग टू आवर डिपार्टमेंट चेयरमैन आमिर इकबाल साहब। तो उनसे जब बात हुई थी, उनसे उन्होंने मुझे बताया था कि इट इज इन द पाइपलाइंस कि ये लोग हमारे, अगर आपने एनडी का कोर्स करिकुलम का पता हो, तो हमारे पास एक कोर्स होता है मेथड इंजीनियरिंग का और एक आईक्यूसी का। मेथड्स इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है वो वेरी रिस्पेक्टफुली काफी शॉर्ट नंबर ऑफ क्लासेस में कवर हो सकता है, तो वो उस कोर्स को किसी कोर्स के साथ मर्ज करके एक एडिशनल लीन और सिक्स सिग्मा का कोर्स ऐड इन करने वाले थे एज अ बेसिक करिकुलम पार्ट ऑफ बी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर ऐसा हो जाए तो दैट इज वेरी गुड, एंड अगर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है दैट्स इवन बेटर। दैट वाज इन प्रोसेस, एंड ये कोर्सेज को, इन पढ़ाइयों को इन लोग को अब रूटीन में लेके आना पड़ेगा। मैं बहुत सारे बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज में मिक्स टेक करते देखता हूँ आज भी। इफ आई टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट लेटर, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और ऑपरेशनल एक्सेलेंस और बिजनेस एक्सेलेंस का फर्क भी नहीं पता। स्टूडेंट्स लीन और सिक्स सिग्मा के भी कॉन्सेप्ट्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा मिक्स कर रहे होते हैं। वी गेट इट, एवरीथिंग इज वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, लेकिन उनके स्पेसिफिक टूल्स पता होना बहुत जरूरी है, कब किस टूल को अप्लाई करना है उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका मिक्स हम लोग को साथ साथ इंप्लीमेंट लेके करना होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आईड लाइक कि मैं स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से मैं चार पांच ऐसे क्विक पॉइंटर जरूर बता दूं जो कि उनके लिए यूजफुल हो, खासतौर पे गोइंग फॉरवर्ड इन द जॉब मार्केट। अब तो उनको बिल्कुल रेडीमेड उतरना है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि वो आए, एंड दे शुड बी गिविंग द मैसेज कि वी आर रेडी टू ज्वाइन, टू स्टडी योर प्रोसेस एंड टू स्टार्ट गिविंग यू बेनिफिट राइट अवे, बिकॉज हमारी सिचुएशन अब इसी तरफ जा रही है। बिल्कुल अजान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एम फ्रॉम मेरान यूनिवर्सिटी, ठीक है।
एनईडी इज अ मतलब काफी अच्छा, एनईडी का मतलब कहते हैं कि फिर भी मेच्योर है बच्चा, लेकिन देयर इज अ बिग गैप। और मैं करिकुलम की बात करता हूँ, आई एम रिस्पेक्टिंग, क्योंकि इस जो हमारे लाइव सेशन है, क्योंकि दो तीन हमारे टीचर्स भी हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी, लाइक यू कैन से कि वो भी वर्किंग कर रहे हैं, एलुमनाई भी वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। बट देयर इज अ बिग गैप, हम लोगों को मतलब रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज भी काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कि यूनिवर्सिटीज में भी थोड़ा सा लाइक मेथड, जैसे आपने मेथड इंजीनियरिंग बताया कि एक हमारे पास है, जैसे कि वर्क स्टडी मेथड है, लाइक सेम एक एक ही कोर्स होगा, हमारे पास वर्क स्टडी मेथड था और एर्गोनॉमिक्स था, तो उसके अंदर भी काफी टीचर जो थे गैप थे। आई नो कि देर इज अ मतलब वो थ्योरेटिकल चीजों पे ज्यादा मतलब होते हैं, दे आर नॉट अ प्रैक्टिकली साउंड, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली साउंड होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं। बट हम अब जो है टीचर्स भी हम लोगों से रब्ता कर रही है, और मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स लॉन्च कर रहे हैं कि यू गाइस कम एंड गिव द सेमिनार, और इस तरीके से जो फील्ड के बंदे हैं वो आके हमें एजुकेट करें, बताएं क्या करना चाहिए। और ये तो इज अ बिग गुड साइन कि हमारी यूनिवर्सिटीज हमें बुला रही हैं अब तो, कि ये देखें, ये वाले कोर्सेज को देखें और इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टूल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, तो इट्स मतलब ये कह सकते हैं कि एक कुरिकुलम है। और सेकेंडली आपने एक बात करी कि मतलब हम लोगों को बिल्कुल मतलब मतलब जो मैदान जंग है एक किस्म से, यू कैन से। और हमें अपने अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं, जैसे लाइक अ वेपन, तो हमें हमें अपने टूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुड कमांड होनी चाहिए। हमारे पास बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, लाइक वर्ल्ड war 2 के अंदर जो जब क्वालिटी इंप्लीमेंट हो रही थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं उसको कंपेयर करूंगा कि हमारे आई ही जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, तो उनको अब चाहिए कि बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होके जो है वो फील्ड के ऊपर उतरें, रिलेटेड टू, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो आई कैन के मतलब उसके अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट उनके यू कैन से के कॉन्सेप्ट बने होते हैं यूनिवर्सिटी, और सारी मतलब छोटा मोटा वो लोग इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप में भी थोड़ा बहुत उनको नो हाउ होती है। लाइक यू कैन से देयर इज अ मतलब मल्टी फील्ड्स इन फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, somebody says I like supply chain planning, and health safety also part of, और क्वालिटी सिक्स सिग्मा, प्रोडक्शन लाइन एंड ऑल दैट। तो उनको उस लेवल के हिसाब से चले, ठीक है ओवरऑल। और दूसरी बात यह है कि एक तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर को पूरा सबका नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास्ट मतलब जो पहले जो मेरे सेशंस थे उसमें एक मतलब जहीर साहब थे, दे आर एचआर मैनेजर डॉलेंस। उन्होंने कहा कि अब एक तो चले ठीक है हमारी स्पेसिफिक फील्ड है, बट हमें अब हर पूरे टूल को एज अ होल देखना पड़े, इंडस्ट्रियल इंजीनियर को हम हर फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑल दैट। तो लाइक अगर जैसे कि मैंने आपका हमारा जो बॉक्स ब्रेन का ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक एजेंडा ये भी था, टू कैप्चर द मार्केट ऑफ द मतलब यंग इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, और जो कि यंग प्रोफेशनल है जो अभी उतर गए हैं फील्ड के अंदर, या अभी जो बैच अभी चल रहा है वो आगे मतलब फील्ड पे जाने वाला है आफ्टर फ्यू 3 और 4 मंथ्स। तो उनके लिए भी यही है कि बिल्कुल आपका एक है कि बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके उतरे। मार्केट स्क्वीज है, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल आपके पास, नॉट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इफ आई सी मतलब जैसे मैंने आपको बताया टीक्यूएम के अंदर मांग रहे हैं, लाइक यू कैन से फेडरल पब्लिक स्कूल के अंदर, फाउंडेशन स्कूल के अंदर, फाउंडेशन स्कूल में। तो जाहिर सी बात डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। और एक मजे की बात आपको मैं शेयर करना चाहूँ इसी तरीके से, एज अ बॉक्समैन वर्किंग कर रहा हूँ, तो बॉक्समैन इज नॉट मतलब हर सेक्टर के अंदर काम कर रही है बॉक्समैन। तो मतलब अभी ये कोरोना आ गया, कोरोना का एक पैनेडेमिक आया, बिफोर मतलब कोरोना आई हैव टू हॉस्पिटल टू इम्प्लीमेंट द लीन एंड टीकेएम थिंग्स। एक सब एक वन ऑफ द हॉस्पिटल इन कोरंगी एंड वन ऑफ द हॉस्पिटल इन दी नॉर्थ नाजमाबाद, तो उन्होंने कहा कि अब हमें लीन के ऊपर थोड़ा सा चलना है। तो लीन इज बेसिकली इज अ वेस्टेज, यू कैन से। तो देर इज अ मतलब देर इज अ मतलब यू कैन से रूम, कि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें, तो है स्कोप, आ रहा है कुछ चीज लेकर आए, कुछ दिखाएं अपनी। आप जैसे आपने बताया कि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, जब आपको कुछ अपने टूल्स के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, तो अदरवाइज यू विल मतलब फेल होने के चांसेस हैं, यू विल नॉट गेट दी। तो देर इज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये नहीं कह सकते अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट वी हैव टू कैप्चर के किस तरीके से होना चाहिए जी।
Yes, absolutely. A couple of points from the discussions you added. First of all, जो आपने बात करी regarding young industrial engineers, और आप कह रहे हैं it's good to see कि यूनिवर्सिटीज अब अप्रोच भी कर रही हैं स्टूडेंट्स को सर्विसेज के लिए. आई थिंक कपल ऑफ डेज ago आपने अजीम को भी अपने पास ऑनलाइन लिया था, जो PSI को लीड करते हैं. अजीम से भी मेरी काफी दफा रूटीन में बात हुई है. इज डूइंग सम वंडरफुल वर्क. The market that is in this situation now, he should be getting together industrial engineers, we should be getting together industrial engineers. हम लोग को quick solutions offer करनी चाहिए companies को. I have a couple of group of my friends जिनके साथ मैंने 6-7 years अलहमदुलिल्लाह colleagues के साथ काम किया है. We've seen textiles में क्या strong areas है, क्या weak areas है, and we are all in the process of uh, establishing our own little setup जिसके अंदर हम लोग टेक्सटाइल कंपनीज को 10 to 12 क्विक सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं. उसमें कुछ सॉल्यूशंस उनकी प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ सिस्टम के एस्पेक्ट्स हैं. ऑब्वियसली हर कंपनी की नीड सेम नहीं होती है. एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट सिचुएशन, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. बट वी आर नाउ एट ए पोजीशन के वी कैन एक्चुअली गो आउट एंड offer freelance services. We can go out and offer companies that give us a certain scope and certain time and resources, and we'll come back with you with this amount of money saved in your pockets. और इस तरह की सिचुएशन हम लोग हमारे बेनिफिट की तरफ जा सकती है. इसमें हम लोग इंटर्न्स यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली अगर जॉब के एस्पेक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं ऑन पेड इंटर्नशिप्स. So there's a lot of opportunity in that area as well, because I know abhi companies are desperate for some quick results, or those things can come through these sort of services as well. Secondly, जो आपने बीच में बात की, जो आपकी पिछली बार HR लीड से बात हो रही थी प्रीवियस सेशन में, you're absolutely right. हमारी फील्ड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस. आई थिंक एनईडी की या वट एवर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऑफर करनी है, आई थिंक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अल्हम्दुलिल्लाह इज प्रोबेबली द मोस्ट डाइवर्स प्रोग्राम दैट वी हैव राइट नाउ. उसके अंदर हम लोग वी आर सीइंग स्टूडेंट्स डूइंग जॉब्स इन सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स के आई डोंट थिंक उसके कंपैरिजन किसी और फील्ड से बनता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स आल्सो अ वेरी वेरी गुड साइन कंपेयर्ड टू अदर फील्ड्स. और फाइनली जो बिकॉज हम लोग कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रहे थे, तो उसमें मैं एक एग्जांपल ऐड इन करना चाहूंगा. द सिचुएशन दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर एट राइट नाउ, वो यही है कि दे आर ट्राइंग टू जनरेट लिक्विडेटेड कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज कंपनीज इसी तरह ही डिफरेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इतना डिले आया था, मार्च अप्रैल में बहुत कम शिपमेंट्स और बहुत कम कंटेनर्स फॉरवर्ड हुए हैं, तो दे कुड सम कंपनीज कुड नॉट जनरेट इनफ कैश, जिसकी वजह से डाउनसाइजिंग की तरफ जाना पड़ रहा है उन लोगों को. What our company and what some other smart companies are doing is कि they are finding ways to generate quick cash. उसमें सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं, हम अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर मैं अपनी पर्सनली कंपनी की बात करूं तो वी वर कैरिंग एटलीस्ट 300 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेंट्री. बाय दैट आई मीन हमारे पास ये एक्स्ट्रा यार्न था, हमारे पास ये एक्स्ट्रा इन प्रोसेस फैब्रिक था, फिनिश फैब्रिक था, सेमी फिनिश फैब्रिक था. इसमें कुछ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, कुछ ए ग्रेड था, कुछ रिजेक्टेड क्वालिटी का था. किसको किस तरह यूटिलाइज करना है, किसी और ऑर्डर में यूज करना है, लोकल मार्केट में सेल आउट करना है, उन ऑप्शन पर काम करा, एंड वी वर एबल टू जनरेट सम क्विक बोनस आउट ऑफ दैट. दैट केप्ट अस इन द सिचुएशन के अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग को डाउनसाइजिंग किसी डिसीजन के ऊपर जाना नहीं पड़ा. तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स के थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड वेज टू जनरेट मनी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारे पास एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि मैं एक आपने वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल दी थी उससे रिलेट करूंगा. मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, लेकिन जो द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड काइजन एक्चुअली हैपेंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. खासतौर पे जब हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स हुई थी, तो दो सिटीज वर एब्सोल्युटली ऑब्वियसली ट्रैश्ड, अ ह्यूज मेस, मलबे और मलबे से भरा हुआ था पूरा शहर. एंड व्हेन द जापानीज गवर्नमेंट वोक अप एंड दे सेड यार कि अब क्या करना है, हम लोगों ने किस तरह हम लोग रीस्टार्ट करें. So the first thing, some people, a group got together and said, "चलो एक काम करते हैं. First of all, let's try to find out the material that we can salvage from this giant mess." जो बचे कुचे फर्नीचर, प्लास्टिक, मेटल, एनीथिंग यूजेबल उनको मिला, उन्होंने उसको कलेक्ट करना शुरू करा कि चलो उसको तो यूज करें. उसके बाद उन्होंने काइजन की एक थॉट प्रोसेस लॉन्च की थी कि यार हर काम गोइंग फॉरवर्ड मिनिमल कॉस्ट के ऊपर होना है. उन्होंने ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक सबको बोला था कि हर चीज को मिनिमाइजेशन की तरफ से काम किया जाए. One of the first kaizens that was ever reported came from a railway station. Railway station के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर हमारे पास स्टेयर्स होते हैं, काफी बड़े स्टेयर्स होते हैं, बड़ी पॉपुलेशन में लोग ऊपर जाते हैं और नीचे उतरते हैं. उसके बीच में एक पार्टीशन होता है, क्योंकि एक रो आपकी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने की होती है और एक रो आपकी स्टेयर्स से नीचे उतरने की होती है. एंड द फर्स्ट रिकॉर्डेड काइजन वाज कि जो बंदा वहां पे पेंट कर रहा था,
व्हाट ही वाज सपोज टू डू वाज कि उसने एक वॉल के ऊपर ऊपर की साइड का एरो पेंट करना था, एंड उसने एक वॉल के ऊपर नीचे की साइड का एरो पेंट करना था, बट उसने एक साइड के ऊपर का एरो पेंट करा एंड देन ही स्टॉप्ड। एंड उसके बॉसेस ने उससे पूछा, भाई दूसरा भी एरो पेंट कर लो। कहते हैं उसको पेंट करने की क्या जरूरत है, जब हमें पता है कि एक साइड पे ऊपर का एरो पेंट हुआ हुआ है, तो कॉमन सेंस यही कहते हैं कि दूसरी साइड नीचे आने के लिए ही है, तो आई एम गोना सेव अ लिटिल बिट ऑफ पेंट। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस किसी ने इस इंटेंशन से कॉस्ट सेव की थी कि ओके लेट्स सेव अ लिटिल बिट ऑफ पेंट। फिर उन्होंने अपने टूथ ब्रशेस की लेंथ को छोटा करा, फिर उन्होंने अपने डिफरेंट मटेरियल्स को इस तरह छोटा करा, एंड दैट सॉर्ट ऑफ ड्रोव दी कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन जो आज दुनिया में हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इसी एग्जांपल को अगर हम टेक्सटाइल की सिचुएशन में एक बात करूं, शॉर्ट एग्जांपल इसमें ऐड करूं, तो हमारे पास जब मार्च के अंदर कोरोना का लॉकडाउन था, शिपमेंट्स बंद थी, सब कुछ रुका हुआ था, तो हमारी कंपनी को, फैक्ट्री को ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट ने ऑपरेट करने से अलाउ नहीं किया हुआ था। तो वन गुड आइडिया केम अलोंग के यार एक काम करते हैं, हमारे पास कोई 20 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेंट्री है जो कि हमारे पास अनसॉर्टेड पड़ी हुई है, लेट्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ लेबर जो कि हमारी वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्रीज को बिन्स में स्टैक कर देगी। हम लोगों ने फिर एक वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करा, जिसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री के बिन्स बनाए, बिन्स की लोकेशन सिस्टम पे डिफाइन करी, हम लोगों ने अपनी ऑर्डर वाइज, कस्टमर वाइज, वीक वाइज इन्वेंट्री को प्लेस करना शुरू करा। बड़ा अट्रैक्टिव सा कानवान सेटअप बना दिया फिजिकली बड़ी इन्वेंट्री का। अच्छा, ये काम हमें नॉर्मली करने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी तो प्रोडक्शन चल नहीं रही थी, लेबर फारिग घूम रहा था, हमने कहा इनको वैसे भी पेमेंट करनी तो है, लेट्स गेट दिस जॉब डन। अब इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ कि वी वर एबल टू कंप्लीट अ सीएसआर एक्टिविटी एज वेल, कि पूरी कुरंगी रोड में जहां पे हमारी फैक्ट्री ऑपरेटेड है, वर्कर्स जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोगों ने बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि वी नीड 150 पीपल फॉर 2 वीक्स, जो कि हमारी इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प कर देंगे एंड विल पे देम। तो वी वर एबल टू हायर सम अदर पीपल्स दैट गॉट डाउनसाइज्ड फ्रॉम अदर कंपनीज एज वेल। तो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट जॉब्स एज वेल, और उस पर्सपेक्टिव से भी सोचने की जरूरत है। व्हाट वाज द बिगेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दैट वाज कि हम लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जब उस कंपनी के अंदर कोई शिपमेंट नहीं हो रही थी। हम लोगों ने उस टाइम के अंदर जहां लेबर को कुछ और काम करने को एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, वी वर एबल टू यूज देम कि यार हमारी इन्वेंट्री सॉर्टिंग का एक प्रोजेक्ट कर लो, कानवान्स के बिन सेटअप कर लो। हम लोगों ने बाहर से तकरीबन 90 लोगों को हायर करा जो कि अपने जॉब लूज कर चुके थे दूसरी टेक्सटाइल कंपनी से। हमने उनको एक मंथ की अर्निंग भी दे दी, और उस एक मंथ के अंदर हमारा महीने भी इतना अच्छा यूटिलाइज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों ने गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो वी आर मूविंग आवर शिपमेंट्स एट द बेस्ट पेस पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने सारी इन्वेंट्रीज अपनी सॉर्ट करके रखी हुई थी, किस ऑर्डर में कौन सा माल पैक होना है। वी वर एबल टू फॉरवर्ड वेरी वेरी क्विकली। तो एक बेनिफिशियल केस स्टडी थी हमारे पास जो भी हम लोगों ने रिसेंटली कंडक्ट की। सही है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग थिंग आपके साथ शेयर हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लर्निंग है। जैसे आपने इन्वेंट्री के बारे में बताया, बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक है, ये बात भी हो गई, सही है। अच्छा, आप जो अभी एक्चुअली क्या नाम है अजान साहब, अभी हमारे यंग यंग जूनियर्स भी हमें देख रहे हैं, यंगस्टर देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या, मतलब आपने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी हैं हमें, मतलब ये हमारे जूनियर्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या मतलब इसका रहेगा, बिल्कुल कि आगे थोड़ा सा जो है वो इन्होंने बिल्कुल करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आना है फील्ड पे उतरने के लिए एंड ऑल दैट, बिल्कुल कोई चांस नहीं है हमारे पास कि मतलब ओवरकम करने का, मतलब कोई भी मतलब एरर के कोई चांसेस नहीं है। तो व्हाट डू यू से अबाउट के मतलब हमारे जूनियर्स के लिए क्या मतलब आपकी एडवाइस होगी? आपने कहा था कि मैं पॉइंट्स बताऊंगा, तो प्लीज़ शेयर करिए। या फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा दैट सम स्टूडेंट्स माइट नॉट एग्री विद मी, बट आई थिंक इन दिस सिनेरियो इसमें उन्हीं का बेनिफिट है जो हमारी फील्ड की डाइवर्सिटी की आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, कि देयर आर जॉब्स इन प्लानिंग, देयर आर जॉब्स इन सप्लाई चेन, देयर आर जॉब्स इन डिजाइनिंग, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिफरेंट ऑप्शंस कैटेगरीज हैं। आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग अगर हम लोग को रियलिस्टिक होना है, तो हर कंपनी में ये जॉब्स श्रिंक हो रही हैं। The only jobs that are increasing right now are the jobs जो कि कंपनीज की कॉस्ट रिड्यूस कर रही है। जो वो लड़के हैं जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, जो लीन डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, जो कॉस्ट रिडक्शन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, everybody should focus on developing their profile in this direction. Everybody should gear up their knowledge for cost reduction tools, for lean implementation tools, for training and coaching people, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके।
सब अपने प्रोफाइल्स को इस डायरेक्शन के ऊपर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, कोर्सेज करें, फ्रीलांस प्रोजेक्ट करें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, इंटर्नशिप्स कर लें, without pay internships कर लें to get experience if they can, और obviously organizations like PSIE, organizations like PIQC, इनका भी बहुत important role है to take this message even forward. बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज इनको इस डायरेक्शन में मिलेगी अगर, बिकॉज आई नो पर्सनली मेरे पास बहुत सारे एक एक मैं जो अपने करियर काउंसलिंग लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को पोर्ट्रे करता हूँ, तो दिस टू टाइप्स ऑफ पीपल बेसिकली, अगर मैं जॉब्स में ब्रॉडली बात करूँ। एक वो लोग होते हैं जिनको रिपीटेटिव जॉब्स पसंद है, एक वो होते हैं जिनको अपने मल्टी फंक्शनल जॉब्स पसंद होते हैं। रिपीटेटिव जॉब्स आर जॉब्स इन प्लानिंग, जॉब्स इन एचआर, आपकी रिपीटेड, आपकी जेडी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एक वीकली प्लान पे काम करते हो, 2 डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हो एंड यू वर्क ऑन इट कंटिन्यूअसली। कुछ लोग अपनी लाइफ में वो पीस ऑफ माइंड प्रेफर करते हैं। फिर कुछ लोग आपके और मेरे जैसे होते हैं जिनको ट्रबल शूटिंग की आदत होती है कि 3 महीने इन्वेंट्री में काम कर लिया, फिर 4 महीने प्रोसेसिंग में काम कर लिया, फिर 2 महीने ट्रेनिंग में काम कर लिया, 1 महीने एचआर के साथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। सम पीपल प्रेफर ए वास्ट और ए मल्टीटास्किंग जेडी। इस वक्त ये मल्टीटास्किंग जेडी के ऊपर अपने आप को स्ट्रेंथन करें, बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर डाइवर्स सॉल्यूशंस कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स प्रोडक्शन में जाएं और काम करें। मैं अगर टेक्सटाइल्स की बात करूं तो डिफरेंट रोल्स हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आर वर्किंग, अगर मैं रोल वाइज डिफाइन करूं तो सबसे पहले तो ऑपरेशंस के अंदर कॉस्ट रिडक्शन का डायरेक्ट रोल है। हम लोग अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर एक सपोर्ट डिपार्टमेंट में बैठा है और ऑपरेशन वाले हेड के पास जाता है, मीटिंग करता है, डिस्कस करता है। नो, वी हैव मूव दैट गाय टू द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। उसका हम लोगों ने सिस्टम, कुर्सी, टेबल सब ऑपरेशन पे फेंक दिया कि जाओ आप मशीन फ्लोर पे पूरी टाइम स्पेंड करो। दे आर लर्निंग मोर, दे आर वर्किंग विद ऑपरेशंस पीपल, और ऑटोमेटिकली वो लोग अपने लेआउट बेहतर कर रहे हैं, अपने फ्लोस के ऊपर काम कर रहे हैं, विजुअल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग दीज गुड थिंग्स। तो प्रोडक्शन का स्कोप तो है ही है। देन एक स्कोप है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का क्वालिटी और क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस के एरिया में। वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं कि प्राइमरीली क्वालिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंस्पेक्शन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, डिफेक्ट्स लाइब्रेरीज पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पर्टिकुलर क्वालिटी चैलेंजेस के ऊपर प्रोसेस कंट्रोल और सिक्स सिग्मा के टूल्स अप्लाई करके डिफेक्ट्स और वेस्टेज रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। फिर जैसे आपने बात की, सम कंपनीज दैट हैव दैट मैच्योरिटी, वो कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी के ऊपर भी इनिशिएटिव्स लेने लग गई है। बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, बहुत कम कंपनीज है। बट दो कंपनीज उस नंबर को अब कैरी कर रही हैं, उनको नजर आ रहा है उसमें कितना ज्यादा स्कोप है। यार हमारी जो रिएक्टिव अप्रोच है कि हम पहले डिफेक्ट बनाते हैं, फिर 100 बंदे लगा के उसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, वही कॉस्ट अगर हम पीछे लगा के राइट फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट निकालें तो हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो सीओपीक्यू प्रोवाइड्स अ वेरी फ्रेश डायमेंशन, क्वालिटी के एरिया में इसमें भी काम है। फिर जो थर्ड एरिया जो कि आई वुड से इस पेंडेमिक की वजह से ज्यादा ग्रो करा है, is that area with QMS, quality management systems and audits and systems departments. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को डिजाइन करने पड़ेंगे वर्क प्लेस एनवायरमेंट सेफ्टी के बेसिस पे लेआउट्स। अब हम लोग अपनी लेआउट डिजाइनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, अब हम अपनी लेआउट डिजाइनिंग में मिनिमल ह्यूमन कॉन्टैक्ट का ख्याल रख रहे हैं, हमने प्रोडक्ट्स को किस तरह सेफ रखना है, हमने एम्प्लॉइज को किस तरह सेफ रखना है, हम लोगों ने कोविड-19 के एसओपीज को ग्राउंड लेवल तक किस तरह इंप्लीमेंट करना है, अपने ऑफिस में किस तरह इंप्लीमेंट करना है, वेयर हाउसेस में किस तरह इंप्लीमेंट करना है। ये सिस्टम्स डेवलपमेंट की एक नई डायरेक्शन जो पहले कभी शायद नहीं थी। क्योंकि मैंने नॉर्मली कंपनीज में देखा कि जो सिस्टम्स डिपार्टमेंट होता है उसमें क्यूएमएस पार्ट में तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स यूज हो रहे होते हैं, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी में नॉर्मली नहीं यूज हो रहे होते। लेकिन अब इस सेक्शन में भी इनकी डिमांड आने लग गई है, बिकॉज दे आर राइट नाउ वर्किंग ऑन दिस। हम लोग के ऑपरेशन के स्टिचिंग फ्लोर्स हैं, हमारे प्रोसेसिंग फ्लोर्स हैं, वहाँ पे जितने भी लेआउट्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लड़के उनको कंसल्ट कर रहे हैं, उनको सेफ जोन्स मार्क करके दे रहे हैं, उनकी मशीन की प्लेसमेंट किस तरह कर रहे हैं, जिसमें वो सेफ डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं और पर स्क्वायर फुट की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का भी ख्याल रख रहे हैं। तो दीज आर न्यू अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट्स को पहले नहीं मिली थी। अगर और ज्यादा इसको मैं फॉर पर्टिकुलरली फ्रेश स्टूडेंट्स बात करूं जो कि इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, एक छोटा सा टिप मैं एक फेलो एक्सपर्ट है उन्होंने रिसेंटली शेयर किया था, वो करना चाहूंगा। थोड़ा सा ऑपरेशन एक्सेल से रिलेट नहीं करता बट जरूरी है, इज दैट के अभी सिचुएशन ऐसी भी हो गई है कि बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरव्यूज ऑनलाइन देने पड़ेंगे। थोड़ा सा कंपनीज में विजिटिंग वगैरह में, तो दैट्स अ डिफरेंट डायनामिक। जब आप फिजिकली इंटरव्यू दे रहे हो तो आप सामने एचआर वाले की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होते हो, आप उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हो। वेब इंटरव्यूज इज अ डिफरेंट बॉल गेम, और ये थोड़ा सा इसको जरा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप सामने रख सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स और पॉइंटर्स अपने सामने रख सकते हो, उनके अपनी की एक्टिविटीज को की समरी लिस्ट बना के रख सकते हो। तो इसका बेनिफिट भी उठाना है, इससे पैनिक नहीं करना है। एंड लाइक आई सेड, एवरी इंडस्ट्रियल इंजीनियर शुड बी सेलिंग देयर प्रोफाइल एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ये टाइम ये नहीं है
कि हम ये कहें कि हम प्लानिंग में काम करना चाहते हैं या हम एक एक रिटोरिक एक टिपिकल जॉब करना चाहते हैं. वी हैव अदर पीपल टू डू दैट. You have to sell yourself as a problem solver, as a guy who will go into the company and save you money. आपने अपने प्रोफाइल को इस एस्पेक्ट से सेल करना शुरू करना. एक छोटा सा क्लोजिंग पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर दूं कि विजुअल मैनेजमेंट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्सटाइल्स. थोड़ी सी रेवोल्यूशन आ गई इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. हम लोगों ने जो गेम्बा बॉक्स के रूटीन शुरू कर दिए हैं, विजुअल केपीआई बोर्ड्स लगाए हैं, उबेर रूम्स बनाए हैं. ये चीज पहले कॉमन नहीं थी, लेकिन इसको मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे देती है. टेक्सटाइल्स में तो हमारे पास क्योंकि इतने रॉ सिस्टम्स होते हैं, तो हमारे बहुत सारे लॉसेस सिर्फ मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग टाइम से ही हो जाते हैं. सिर्फ विजुअल केपीआई बोर्ड से जो आप अपने मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग टाइम बचा रहे होते हो, जो आप डेली डेली अपडेट्स देख रहे होते हैं. हम लोग पहले डेली प्रोडक्टिविटी ट्रैक कर रहे थे, अब हम आवरली प्रोडक्शन ट्रैकिंग पे ऊपर आ गए. दैट्स एन इवन मोर ग्राउंड लेवल है. हमारे रिएक्शन टाइम और कम होता जा रहा है. दैट इज सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एडवांस टूल, 10-15% प्रोडक्टिविटी सिर्फ विजुअल मैनेजमेंट से उठा लेते हैं. सीन दैट हैपन. और अब ये भी एक बहुत कॉमन टूल बन रहा है. कंपनीज लाइक आर्टिस्टिक की बात कर रहे हो, आप रजबी की बात कर रहे हो, मैं होम टेक्सटाइल की बात करूँ, यूनस गुल अहमद, एवरीवेयर जो विजुअल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स लीड कर रहे हैं. एंड दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू केपीआई बोर्ड्स. ये सिर्फ ग्राफ्स और लाइंस का नहीं है. विजुअल मैनेजमेंट आप अपनी इन्वेंट्रीज में भी लगाते हो, आप अपनी फ्लोर स्पेसिंग में भी लगाते हो, अपनी डिफरेंट गेजेस के ऊपर भी लगाते हो. उसमें भी बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसपे काम किया जा सकता है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा इन डिमांड है टेक्सटाइल मार्केट के अंदर. और कंसिडरिंग द पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है, you're right to point out कि inshallah these things, hopefully this disease goes away very soon, but we need to understand the reality कि हमें इन circumstances के साथ कुछ अरसे तक रहना है. और जो सब लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, हमें इसकी आदत बनानी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स हमारी फैक्ट्रीज इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगी, सैनिटाइजेशन गेट्स के साथ चलेंगी और एक प्रिकॉशियस अप्रोच के साथ चलेंगी. वी नीड टू डेवलप स्मार्ट इनफ सॉल्यूशंस जो इन एक्टिविटीज को सस्टेन कर पाए इन कॉस्ट इफेक्टिव वे. इनफैक्ट आप अभी लिंक्डइन पे ही देखते होगे तो विद इन 1 मंथ आपने देख लिया होगा कोई 1,000 कंपनीज हैं जिन्होंने सैनिटाइजेशन गेट्स और कोविड-19 के मास्क बनाना ऑफर करना शुरू कर दी. तो दैट्स गुड ऑफ देम. दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. दैट गोज फॉर अस एज वेल. So if I sum it all up, they need to prioritize their profile as problem solvers, as lean implementers. विजुअल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम करना है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बेसिक टूल्स के ऊपर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है. एंड दे रियली नीड टू सेल देमसेल्व्स एज कॉस्ट रिडक्शन पीपल. अपने आपको आप लीन की जॉब्स को टारगेट करें, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के जॉब्स को टारगेट करें. यहाँ पे टेक्सटाइल्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. नॉट जस्ट टेक्सटाइल्स, अदर कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन टेक्सटाइल्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेगा टू रिड्यूस कॉस्ट वेरी क्विकली. इधर सबसे ज्यादा जल्दी से इन रिजल्ट्स की, क्विक रिजल्ट्स की ज्यादा जरूरत है. तो दे विल कम हायरिंग फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना है, आप लोगों ने रेडी रहना है, आप लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है. देन इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर फॉर एवरीबॉडी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच अजान. आपने काफ़ी अच्छा डिटेल बताया टू अवर यंगस्टर एंड यंग इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स. एंड तो अच्छा, अजीम साहब की बात करिए. अजीम साहब इज़ आल्सो वाचिंग अस. हेलो टू अजीम साहब. तो अजीम भाई भी हमें वॉच कर रहे हैं. हमारा इंडस्ट्री 4.0 के हवाले से उनके साथ इंटरेक्शन रहा था. ये मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई हमें इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया काफ़ी चीज़ें. और ये भी बताया कि वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. और दूसरी मजे की बात ये, जैसे मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, अजीम साहब के साथ इंटरेक्शन था मेरा पहले, तो हमारे पास अब जैसे वर्ल्ड चल रही है, जैसे हमारा दुनिया चल रही है और जैसे अब मतलब स्कोप एनहांस होता जा रहा है, तो हमारे पास जो है अभी एक और जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं जॉइंट कोलैबोरेशन. तो हमें उसके ऊपर भी हम लोग अब काम कर रहे हैं. लाइक मैं आई एम कनेक्टेड विद यू एंड अजीम साहब एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं. तो हम लोगों ने अब जॉइंट कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है. तो इंशाल्लाह इन दैट इन फ्यूचर और आगे वाले मतलब इसमें फ्रीलांस हम लोग बिल्कुल काम करेंगे. जैसे आपने फ्रीलांस का भी वर्ड यूज किया. हमारे पास इंजीनियर भी होंगे, हम लोग खुद भी गाइड कर रहे होंगे. हमारा बॉक्सबैंड का भी यही मतलब मेरा अपना विजन भी था और बॉक्सबैंड का भी विजन यही था कि हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्कोप को ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ, नॉट रिलेटेड और स्पेसिफिक विद वन पर्सन, विद मी और वन मोर पर्सन, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम कर रहे हैं और फ्रीलांस काम कर रहे हैं, फ्रीलांस काम करेंगे हमारे साथ. और लाइक जैसे कि मतलब हर कोई बंदा जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ मतलब एक फ्लैग
फ्लैगशिप होती है कि फ्लैगशिप लेके घूम रहा होगा कि हमने इम्प्रूवमेंट करनी है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। बॉक्स ब्रेन के लिए आप क्या कहेंगे, कुछ कमेंट्स? थैंक यू। No, yeah, I'm really glad. I've been following your activity for a couple of weeks now. It's good to see, and you're right. कि थोड़ा सा this is an opportunity for us to come in front of the market. और as you saying, हम industrial engineering की जो initiatives हैं, इस वक्त उसकी visibility को बहुत maximize कर सकते हैं. We have so many different platforms for that, through LinkedIn, through different other mediums as well. Uh, एज यू सेड, आई जो मुझे थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी ऑन अ पर्सनल नोट भी नजर आती है वो यही आती है कि वी नीड टू डेवलप प्लेटफॉर्म्स जो कि कंपनीज को क्विक सोल्यूशंस ऑफर कर सके। मैं बार बार क्विक सोल्यूशंस का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस की जर्नी है कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, कुछ रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म आते हैं, लेकिन इस वक्त डिफरेंट कंपनीज को क्विक फिक्सेस की भी जरूरत है, जिसमें अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूं तो आई फील कि उसमें इन्वेंट्री रिडक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हम लोग के जो कंपनी की लीडरशिप है वो बहुत फनीली एक बात कहती है कि जी हम लोग की इन्वेंट्री के अंदर ही तकरीबन 250 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। हम लोग सिर्फ इसको रिड्यूस कर दें, हम लोग जो 60 डेज की इन्वेंट्रीज कैरी करते हैं, हम लोग अगर उसको एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ले आए, ये सारा पैसा जो खुल के जाएगा ये कंपनी में इन्वेस्ट होगा। फिर चाहे वो इंडस्ट्री 4.0 हो, हर तरह की ऑटोमेशन हो, बिजनेस की एक्सपेंशन हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट। तो टेक्सटाइल्स में स्पेसिफिकली अगर इन्वेंट्री रिडक्शन की बात करूं तो उसमें कुछ सिस्टम्स रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके अंदर कुछ लाइन बैलेंसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि वी कैन ऑफर कंपनीज फॉर सम क्विक रिजल्ट्स। और उसमें दैट्स आई एम नॉट लिमिटिंग दैट टू टेक्सटाइल्स ओनली, कि टेक्सटाइल से बाहर भी एक्टिविटीज हो सकती है। Boxbrain has a lot of platform for that. I think you should carry on. The only advice I can give you for this case, try to get more students on board with us. Try to get more live sessions with a lot of students. इंशाल्लाह जब हालात इतने बेहतर होते हैं कि फिजिकली जाके सेशंस करेंगे, that will have an even bigger impact कि हम लोग यूनिवर्सिटीज को विजिट करें या कंपनीज को विजिट करें. We get students together, get their questions together, understand their mindset better. There's a lot of potential that you can build up from your Boxpen initiative. ओके अजीम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम एक सेशन आपसे इंशाल्लाह सून आफ्टर, बिकॉज अभी हमारे पास जो है ना सेशंस मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक के अंदर फ्राइडे और वेडनेसडे को एक इंटरनेशनल सेशंस होने जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल बी अरेंज द सेशन आफ्टर ईद। सो उसके लिए हमें आफ्टर ईद के बाद हमें आपसे एक सेशन रिक्वायर्ड होगा, उसमें काफ़ी हम अच्छी और डिटेल में बात करेंगे। तो रिलेटेड टू ऑपरेशनल एक्सलेंस की बात करें तो हम और एक और मतलब टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अजीम साहब, थैंक यू। You're welcome. You're welcome, sir. You're welcome, sir. You're welcome.